Hello and welcome to Goa News Now. Today we have one of the most vibrant guests who have worked in social field since last 3 decades in Goa and has been performing his best not only for the downtrodden but for those who have been forced into the sex trade. So, to start with, I will first welcome our guest, Sri Arun Pandey ji. Welcome to the show, sir. Thank you very much, Naveen for inviting me for this interview. Arun ji, before I start on, how this idea came up with starting an NGO for those people who have been thrown out of the society. It happened way back in 1992. Hmm. I did my law from Lucknow University, Hmm. and after that, I was interested in doing criminology, and that's the reason I joined Tata Institute of Social Sciences, Bombay, way back in '92. Hmm. While studying at Tata Institute, I visited Kamatipura for my field visit, and that was my first exposure. Seeing the red light area where children, women, and girls were being commercially sexually exploited. और चूंकि मैं एक स्टूडेंट था लॉ का, तो मेरा ये था कि भैया ये पब्लिक प्लेस है और किस तरह से ओपनली बच्चे लोगों को, लड़की लोगों को और औरत लोगों को है ना इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. सो एक जिज्ञासा जागी कि इसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहिए, है ना. एंड डेफिनेटली आई वाज डिस्टर्ब seeing the children, women, and girls being openly commercially sexually exploited. And there were men who were mainly drug addicts, women brothel keepers, pimps, who were openly soliciting these person and selling them. Okay. उसके बाद क्या हुआ कि आई फिनिश्ड माई पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन आई ज्वाइन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एज अ सीनियर रिसर्चर. एंड देन आई वॉज एंगेज इन डूइंग अ नेशनल स्टडी on commercial sexual exploitation to understand अरे कि कोई क्यों इसमें आता है और साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की क्या सर्विसेज है. ये स्टडी 3 साल तक चली जिसको नेशनल विमेंस कमीशन ने सपोर्ट किया था. तो यहाँ से शुरुआत हुई. अरे जहाँ तक सवाल है कि अरे कि गोवा में कैसे हमने ये जब स्टडी किया, इसके कुछ रिकमेंडेशन आए थे और इस स्टडी के दौरान ही एक बहुत ही क्लोजली सिचुएशन को समझने में एक अवसर मिला था. एंड देन व्हाट वी फेल्ट इज दैट आई डिड हैड अ चॉइस टू जॉइन टीएसएस एज अ लेक्चरर, बट देन आई फेल्ट इट इज नो with seeing it so closely, and there are certain recommendation which has come through the research. There is a need to go at grassroots level and work. And I selected Goa because Goa was not new for me. Because during my national study, I have already visited the then Baina red light area, and I have seen how the children and girls were commercially sexually exploited. और उस समय ये भी था कि गोवा में एक देवदासी प्रथा होती थी, जो कि कन्नड़ी जो कर्नाटक में गॉडेस यल्लम्मा है कि कर्नाटक में ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस थी वो गोवा में भी होती थी. जैसे आप जानते हैं कि गोवा में वो एक लार्ज पॉपुलेशन नॉर्थ कर्नाटका की है. हाँ. और ये जो बायना और काटे बायना में रहते थे. सो एक रिलीजियस प्रैक्टिस था. दूसरा ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोस्टिट्यूशन था, जहाँ पे हमने काटे बायना के जो लोग थे वो कहीं पे इस पे अपने अपने सर्वाइवल के लिए इस पे डिपेंडेंट थे. सो द कम्युनिटी वॉज ऑल्सो सपोर्टिंग. So there was some kind of interest of mine not only working towards child prostitution but opportunity to work towards breaking this religious practice and community based prostitution. So that's the reason, even though I traveled all over India, I selected Baina for my intervention. But when you started it, you had a flourishing career. You were a law graduate, then you have been postgraduate in criminology. एडवोकेट तो आप आराम से ही हैं. तो वो फील्ड छोड़ के जब एनजीओ का किया तो इट्स अ फाइनेंशियल लॉस ऑल्सो बिकॉज इफ़ यू आर एडवोकेट यू कुड हैव अर्न मैनी थिंग. हेयर तो यू हैव टू हैव बीन वर्किंग ऑन द फील्ड टू मच. सो ये जो डिफरेंशिएट था, ये कौन सा थॉट आपको एक्चुअली क्लिक किया कि यही करना है? ये आपका कहना सही है. आई थिंक नॉट ओनली बीइंग अ लॉयर बट टाटा इंस्टीट्यूट इज अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट. और जो भी मेरे बैचमेट हैं ज़्यादातर वो यूएन वगैरह या अब्रॉड हैं, है ना. सो एक तरह से फाइनेंशियल तो नुकसान था ही था, है ना. और दूसरा ये चीज़ था कि 3 साल का जो रिसर्च था उसके बाद TISS में ये ऑफर था
है ना कि यहाँ पे लेक्चरशिप का है ना आप ले सकते हो। पर हुआ ये कि क्लोजली ये जो सिचुएशन को देखा है ना, और उसके बाद जो 3 साल नेशनल स्टडी किया, तो एक तरह से एक गिल्ट फीलिंग था कि अगर हम ग्रास रूट पे जाके काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक रिपोर्ट बना के भारत सरकार को दे देना और नेशनल विमेन कमीशन को जमा कर देना से ना जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। ओके, तो उस समय है ना क्वाइट आइडियलिस्टिक थे और ना ऐसे नहीं कभी बदले हैं, है ना। तो ये था कि उस समय लगा कि ठीक है ना कि 3 साल दिया है इसको, 3 साल और देते हैं। तो इनिशियली व्हेन आई केम टू गोवा, माय प्लान वाज दैट कि वी वर्क फॉर 3 years एंड थॉट दैट कि है ना कि 3 साल में सब कुछ बदल जाएगा। पर आज आप देखिए कि 30 साल हो गया, अभी भी इशू पे काम कर रहे हैं, और ये दिखाता है कि कितना कॉम्प्लेक्स है ना, और कितना फैला हुआ है। जब आप गोवा में स्टडी शुरू किए और जब आपने एक्चुअली फील्ड में काम किया, आपने बोला कि यू स्टार्टेड विद बायना, सो व्हाट वाज द सिचुएशन देयर व्हेन यू एक्चुअली स्टार्टेड द वर्क? है ना, जब हमने स्टार्ट किया था उस समय वे बैक 1998 में, है ना, ये था कि बच्चे लोगों को जो भी ना लड़कियां थी, एज सुन एज दे अटेंडेड प्यूबर्टी, ओके, उनको डेडिकेट किया जाता था गॉडेस यल्लम्मा को, और फिर उसके बाद उनको डायरेक्टली धंधे में डाल दिया जाता था। ओके, देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ गर्ल्स हु इन प्रोस्टिट्यूशन वेयर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ओके, और फिर उसके बाद उस समय जो था कि ज़्यादातर लड़कियां जो लोग थे, है ना, वो आंध्र प्रदेश के थे और कर्नाटका के थे, है ना। लार्ज नंबर ऑफ केसेस देयर वाज फोर्स प्रोस्टिट्यूशन। और जो सबसे दुख की बात ये थी कि उस समय जब तक हमने काम शुरू किया था, है ना, देयर वाज नो, है ना, रेस्क्यू ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन और माइनर्स फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन। जो कॉन्सेप्ट था कि अना कि हम कहीं कि इनका कोई ह्यूमन राइट्स है ही नहीं है, लीव असाइड एडल्ट्स, जो बच्चे लोग भी डेडिकेट करके प्रोस्टिट्यूशन में डाले जाते थे, या जो माइनर्स थे प्रोस्टिट्यूशन में, है ना, उनको भी उस समय निकालने का कोई प्रावधान नहीं था। जबकि कानून है, कानून तो बहुत पुराना है, 1956 का है। देन ऑल्सो एट दैट टाइम वी फाउंड दैट द लॉ वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन फॉर सेलेक्टिंग गोवा, बिकॉज वी फाउंड दैट कि द चिल्ड्रन आर देयर, minor girls are there, but no initiative is being taken by the state to rescue them and rehabilitate them. आपको जान के आश्चर्य होगा कि है ना उस समय भी प्रोटेक्टिव होम एक हुआ करता था, है ना मर्सेस में, पर वहाँ पे 10 साल से कोई भी लड़की रिफर नहीं की गई थी, है ना, और इनफैक्ट स्टाफ वहाँ पे अपॉइंटेड थे। It is only when we started rescuing minor girls from prostitution, and then there was a problem of where to keep them, where to house them. And then when we explored with the Women and Child Welfare Department, they say, है पर 10 साल से कोई लड़की नहीं आई है, चलो आप रेस्क्यू कर रहे हो तो हम ना अब उनको रखेंगे। So this was the situation. Also we found is that the strong nexus of police, politicians, and those who were involved in commercial sexual activity, those who were making a business from this. So it was a very established and organized market with completely supported by goons of not only Baina Vasco but all over Goa. If in fact you have highlighted a very good point that there was no rescue happening of those days, so that's the reason it flourished like anything. Another point what you said about the patronage which they were getting from police and politician, so that still continues. This, do you think in Goa otherwise now? No, things have changed a lot now. Okay, because when we started, there was no law to banning dedication. It was an initiative of us in collaboration with other NGOs and local community that we came on the street, and then the government, when they were formulating Goa Children's Act, they made a provision for that. Okay, so and that also the government did consult us while formulating Goa Children's Act, and they have a chapter on Goa commercial sexual exploitation, and we have stringent other laws. Also now we have anti-human trafficking unit. Okay, now we find is that the people in law enforcement agencies are more sensitive. Okay. I can't guarantee that there is no nexus. Okay, because I personally believe is that if the state wants, they can completely stop commercial sexual exploitation. Okay, but we feel is that the situation is much better, because there was a time that we found is that it was openly being done, but presently if you go to see that it is not being openly being done,
wherever police is getting information, okay, relatively if you go to see the action is happening. In fact, the recent NCRB data, the National Crime Report Bureau 2020 data shows that the maximum number of cases registered for commercial sexual exploitation per capita population was in Goa. Okay, so these are some the good step taken, but at the same time, if you go to see the same NCRB data 2020 shows that not a single conviction. Okay, Quite bad. so till and until there is a conviction, there will be no deterrent, and those who are involved in this and making crores of rupees, okay, definitely they will continue in this. अभी अगर आप देखने जाएं तो स्थिति क्या है, अगर एक लड़की को पिम्प एक क्लाइंट के पास भेजता है तो वो 25,000 ना लेता है, और अगर उसको 4 क्लाइंट को एक दिन में भेजे तो इमेजिन इजिली इज मेकिंग 1 लाख रुपी, and suppose he has 2-3 girls, that is the minimum he has. So imagine the kind of amount he is making. So till and until there is some deterrent action taken against these persons, okay, they will not leave this the business. I'm talking about the pimps and brothel keepers and those who are involved, traffickers, those who are involved in this business. Okay, so therefore there is a need to prosecute them, okay, and then only somewhere we will be able to control. Sir, before we started the interview, you told me that you have helped over 1,000 girls, into the trade and rescued 2,000 plus. Then there are international, tourists also who had been, into this drug sex trade. So, what happens after you rescue them? What happens to them? सी यहाँ लॉ बहुत ही क्लियर है, जिसके अंदर जो भी रेस्क्यू जो हम भी करते हैं, हम अपने आप जाकर रेस्क्यू नहीं करते, हर रेस्क्यू में पुलिस इन्वॉल्व होती है, ठीक है. सो वंस द गर्ल्स आर रेस्क्यूड, दे आर प्रोड्यूस्ड बिफोर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट. द पुलिस डजंट हैव अथॉरिटी, नाइदर द एनजीओ हैज अथॉरिटी आफ्टर रेस्क्यू, छोड़ दो. ओके, सो दे आर प्रोड्यूस्ड बिफोर द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इन गोवा, एंड देन द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रिफर्स देम to protective home. If they are adult, if they are minor, they are sent to the child welfare committee और अपना घर and for safe custody and protection. उसके बाद क्या होता है कि जो SDM है in case of adult and CWC है in case of minors, they conduct an inquiry. So वो इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं कि भाई ये लड़की कौन है ना, ये कैसे आ गई यहाँ पे, कौन कौन इन्वॉल्व है, और अगर और किस तरह से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं या रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, और ऐसा क्या किया जाए कि वापस वो प्रोटेक्टिव हो, वो वापस वो इस धंधे में वापस ना आए. सो वो होता है ना. अर्ज का एक कोलैबोरेशन है विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट का सिंस लास्ट 22 years. So what we do is that we have a team of professionals which includes lawyers, social workers and counselors. So we go to अपना घर and to protective home and provide services to these victims. Also what we do is that while working at protective home, सबसे important हो जाता है कि अगर लड़की लोग को छोड़ा जाए, मतलब ज़्यादातर लड़की अगर देखने जाए कि हमारी जो एक रिसेंट हमने स्टडी की थी उसके अनुसार 93% of the girls are from outside the state and 7% are from Goa. Okay, those who were rescued by the Goa police. तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम उस स्टेट में जहाँ की लड़की है, हम एनजीओ के हेल्प से या पुलिस और विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के वहाँ के हेल्प से एक होम स्टडी करवाते हैं, है ना, कि देखें कि कितनी सेफ है वो, है ना, क्या फैमिली इन्वॉल्व है कि नहीं है, और वो रिपोर्ट्स हम मजिस्ट्रेट को जमा करते हैं, और बेस्ड ऑन दैट द मजिस्ट्रेट इंटरेक्ट्स विद द विक्टिम एंड टेक्स अ फाइनल डिसीजन कि लड़की को यहाँ पे रखने का प्रोटेक्टिव होम में या किसी की कस्टडी में देने का है, और द गर्ल हैज़ टू बी रिपैट्रिएटेड बैक टू हर स्टेट. सो एक तरह से देखा जाए तो गोवा में अगर हम देखें पोस्ट रेस्क्यू है ना सर्विसेज बहुत अच्छे हैं, है ना, पर बहुत कुछ और भी करना ज़रूरी है, पर कंपेरेटिवली टू अदर स्टेट वी हैव अ बेटर सर्विस पोस्ट रेस्क्यू. Sir, many months ago, I had visited one shed which is under Operation Swift Wash. आपने बहुत लोगों को वहाँ पे काम दिया एंड दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट. ये कॉन्सेप्ट कैसे आया एंड इज इट स्टिल फंक्शनल? अगर कि जो स्विफ्ट वॉश का कॉन्सेप्ट आया था जो बायना डिमोलिशन हुआ है ना उसके बाद से, ओके, हालांकि उससे पहले है ना हमारा यही एम था कि एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट
हम ज़्यादातर लड़की लोग को रेस्क्यू करते थे, प्रोटेक्टिव होम में डालते थे, और फिर उसके बाद उनका हम जो जो ट्रैफिकर थे उनका प्रोसिक्यूशन कर रहे थे। पर जब लड़कियां रेस्क्यू होने लगी तो उन्होंने ही हमसे पूछना शुरू किया, ठीक है सर, आपने हमें रेस्क्यू कर दिया है, बहुत गुड, आपने हमने एजुकेट किया, अवेयर किया कि भाई ये देवदासी प्रथा सही नहीं है, और या जो वैश्यावृत्ति है वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, और ज़्यादातर हमारे केस में फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व हैं तो हम उनके पास नहीं जा सकते हैं, अब क्या, है ना, क्या आप हमें रोजगार दोगे? है ना? तो हमने कोशिश किया उस समय कि उनको पेट्रोल पंप पे या दूसरे जगह पे, है ना, प्लेसमेंट करने के लिए, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा हमारा मॉडल। है ना, क्योंकि जैसे गोवा एक छोटी जगह है ना, और जो भी बायना में धंधा करते थे, है ना, सो वो पहचान में आने लगे जब वो बाहर जाके काम करने लगे, एंड दे स्टार्टेड गेटिंग सॉलिसिटेड, सो दे केम बैक एंड से सर क्या फ़ायदा है, आप हमें पेट्रोल पंप पे रखते हैं, वहाँ पे हम खड़े हैं फिलर के रूप में, और लोग आके बोलते हैं चलती है क्या, चलती है क्या, है ना, वो ज़्यादा ख़राब लगता है ना। सो ये सब हुआ, उसके बाद हमें लगा कि नहीं, हमें कोई इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करने का है, करना ज़रूरी है, कि भाई एंड ऑफ द डे इट इज़ द इशू ऑफ लाइवलीहुड, है ना। अगर आपने लड़की को रेस्क्यू किया है और वैसे ही छोड़ दोगे तो क्या करेगी? ओके, और साथ साथ लाइवलीहुड भी एक थी, और दूसरा चीज़ ये था कि साइको सोशल सर्विसेज इनको ज़रूरी था, बिकॉज वॉट हैपन्स इज दैट, एज यू विल अंडरस्टैंड, इज दैट इफ अ गर्ल इज बीइंग कॉमर्शियली सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड, उसका फिजिकल, है ना, और साइकोलॉजिकल जो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो बहुत ही बुरा है, और उसके लिए टिल एंड अनटिल उसको प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, है ना, वो वापस, है ना, कि नॉर्मल नहीं हो सकती है किसी भी काम में फिट होने के लिए। और कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो ऐसे लोगों को क्यों लेगा, है ना, अगर वो फिलैंथ्रोपी के, पर उसको ये रहेगा भाई तुम काम तो करो ना। पर ज़्यादातर लड़की लोग जैसे इंडिया में हैं, दे ज्वाइन एट द एज बिटवीन 14 to 16, अराउंड 80% ऑफ द, दिस इज द एज व्हेन दे आर इंडक्टेड। इंडक्ट होने के बाद आप इमेजिन करिए 8 से 10 कस्टमर हर रोज एंटरटेन करना उनको करना पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर। डेफिनेटली प्रोस्टिट्यूशन में रहने के लिए, पेन न लेने के लिए, वो दे गेट इनटू ड्रग्स, दे गेट इनटू एडिक्शन, उनका लाइफस्टाइल होता है कि देर से सो और देर से उठो, ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दे गेट इनटू अब्यूजिव लैंग्वेज, ये सब एक हो जाता है सिस्टम। आप जिस ऑक्यूपेशन में काम करते हो, एक तरह से वो अनफिट हो जाते हैं किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो हमारा भी जो पहला एक्सपेरिमेंट था कि उनको हम प्लेस करें कहीं पे, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमें लगा कि नहीं भाई, हमें खुद स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर ट्रेन प्रोफेशनल्स, ओके, सोशल वर्कर्स, तो हमें खुद स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ पे कि हम इनको रखें, और इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन कहें, है कि सिर्फ उनको काम ही नहीं, काम के साथ साथ उनको समझे और जो उनकी नीड्स है उसके अनुसार सर्विसेज दें, ओके। उसी समय बायना डिमोलिशन भी हो गया, ओके, और हमें ये फियर था कि ये जो लड़की लोग हैं वो पूरे गोवा में स्प्रेड हो जाएंगे, okay. और साथ ही साथ अगर आप उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो तो बायना में भी शुरू हो जाएगा, है ना। पुलिस तो वहाँ खड़ी नहीं रहने वाली है, कहाँ खड़ी थी उसके बाद बायना डिमोलिशन के बाद। सो देन वी स्टार्टेड दिस इन 2006, है ना, हमने ये स्टार्ट किया, और इस दौरान जिसके अंदर वहाँ पे लड़की को 10 जो भी मिनिमम वेजेस था वो मिलता था, ESI, PF, क्रश, बस फैसिलिटी था पिक एंड ड्रॉप के लिए, और इस दौरान मोर देन 1000 लड़की लोगों ने हमारे यहाँ से बेनिफिट किया। एंड नॉट ओनली दिस, द विक्टिम्स, बट इवन ब्रॉथल कीपर्स एंड पिम्स, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, आई बिलीव इन रिफॉर्म। सो वहाँ पे वो लोग भी आए, बोले कि अब तो लड़कियाँ नहीं है, हमारा कैसे पेट चलेगा, तो आप हमें भी रोजगार दो, तो उनको भी रोजगार दिया गया, है ना। और ये एक ऑल्सो एक मेन कारण है कि बायना वापस से रीस्टार्ट नहीं होने का। तो हमने एक जगह सबको लाइवलीहुड दिया, और दूसरी तरफ जो वहाँ के यूथ थे उनको हमने कहा कि प्लीज़ नज़र रखो कि नई लड़कियाँ यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि सरकार तो डिमोलिशन करके चली गई, उसके बाद वहाँ पे क्या होता है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। सो हमने वहाँ पे ध्यान दिया, और साथ साथ जब कभी कुछ लड़कियाँ आई वहाँ पे, है ना, तो हमने क्राइम ब्रांच के हेल्प से, है ना, उन लड़की लोग को रेस्क्यू किया। तो एक मैसेज गया कि अब बायना में यहाँ पे लोग धंधा करने नहीं देंगे। सो एक और चीज़, एक जो हकीकत है कि बायना डिमोलिशन के बाद वहाँ पे एक्टिविटी ना होने का कंट्रीब्यूशन जो है लार्ज टू एक्सटेंट वहाँ के लोगों को जाता है जो स्लम में रहते हैं, कि उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जैसे ही आया इन्फॉर्मेशन दिया, हमने पुलिस का हेल्प लिया और किया, तो ये रहा है। सो जो स्विफ्ट वॉश रहा है, इट हैज़ बीन ए ग्रेट इनिशिएटिव, इनफैक्ट इज एन मॉडल, और उसी के वजह से भारत सरकार ने हमें नारी शक्ति अवार्ड भी दिया है, एंड इंटरनेशनली ऑल्सो इट इज़ एक्नॉलेज्ड।
अभी कोविड के समय से बंद है, अप्रैल से फिर हम उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। और साथ साथ कोविड के वजह से और भी लड़कियां वल्नरेबल हुई है, तो हम एक और बिजनेस यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं कि दैट इज पेपर प्रोडक्शन यूनिट, जिसके अंदर हम टिश्यू पेपर, टॉयलेट रोल, किचन रोल, पेपर कप्स, इसका प्रोडक्शन करेंगे। So the idea is basically to provide them some kind of economic opportunity. Uh, Beyond that, sir, I wanted to know आपकी जो team है, there are so many good people in your team. I've met so many. You all also carry out survey and research in slum areas. कुछ ऐसा सर्वे जो कि शॉकिंग लगता है आपको देख के या सुन के? हमारा जो ब्रॉडर इशू है वो सेक्सुअल वायलेंस है, ठीक है। तो जो जो कॉमर्शियल सेक्स ट्रैफिकिंग फॉर कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, वो हम नेशनली काम करते हैं और इंक्लूडिंग इंटरनेशनली। और आपको बता दें कि अभी हमने एक स्टडी की थी 2014 से लेकर 2019 तक, जो लड़की लोग रेस्क्यू हुए हैं गोवा पुलिस के द्वारा, उसकी स्टडी की थी। और उसमें एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लड़कियां जो ट्रैफिक हुई हैं वो 24 स्टेट से हैं। तो टोटल हमारे 28 स्टेट्स हैं इस कंट्री में, तो वहाँ से नियरली 24 स्टेट से लड़की लोग, ऑल ओके। तो हम वो नेशनली काम करते हैं, जहाँ जहाँ से लड़कियाँ आती हैं उस स्टेट को हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्या मोडस ऑपरेंडी है, क्या ट्रैफिकिंग रूट है, क्या प्रोफाइल है ट्रैफिकर्स का, सो दैट दे कैन टेक एक्शन। इट इज़ नॉट ओनली रेस्क्यू द गर्ल्स हियर, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द सोर्स स्टेट्स ऑल्सो टेक सम एक्शन सो दैट द ट्रैफिकिंग इज कंट्रोल। सो वो एक वहाँ पे वो हुआ सेक्स ट्रैफिकिंग के बारे में। दूसरा जो इशू है वो है सेक्सुअल वायलेंस का, और सेक्सुअल वायलेंस का हमारा मेन ज़्यादा इंटरवेंशन बरबुगांव तालुका में है ना। और इसके लिए हमने क्या किया कि जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है कि जो दो तरह के इंटरवेंशन हैं, एक तो हम स्लम्स में काम करते हैं और दूसरे सब स्कूल्स में जाते हैं। तो जो स्कूल में जो काम है वो ज़्यादातर अवेयरनेस का है, तो जाते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलके उनको अवेयरनेस करते हैं बच्चे लोगों को, और अगर वो बच्चे कोई केस रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस का असिस्टेंस लेके एक्शन होता है। दूसरी साइड जो स्लम्स का है, वहाँ पे कि ज़्यादा कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन है। तो न केवल हम अवेयरनेस पे काम करते हैं, बट ऑल्सो वी गेट इनटू व्हाट आर द फैक्टर्स ओके विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। और इसी रिलेटेड हमने 2-3 साल पहले हमने क्या किया था कि बच्चों को इन्वॉल्व करके स्लम्स के हमने मैपिंग करने की कोशिश की थी उनके एरिया को, कि क्या सेफ प्लेस है, क्या अनसेफ प्लेस है, उनको क्या लगता है बच्चे लोगों को, ओके, बिकॉज फाइनली दे सफ़र। और उन्होंने इस स्टडी की बहुत ही अच्छी फाइंडिंग आई है, जिसके अंदर ने उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि किस तरह से टॉयलेट अनसेफ है ना, टॉयलेट के पास क्योंकि टॉयलेट में डोर्स नहीं है, या टॉयलेट का जो है ना, पब्लिक टॉयलेट की बात हो रही है ना, वहाँ पे जो एंट्री है मेल और फीमेल दोनों के साथ में है, ओके। तो कुछ बदमाश एलिमेंट लड़के लोग हैं वो वहीं पे खड़े रहते हैं, और जब लड़कियां जाती हैं तो कमेंट पास करते हैं, है ना। और दूसरा है कि टॉयलेट है तो ये प्रॉब्लम है, और टॉयलेट नहीं है तो जब वो बाहर जाते हैं डिफेकेट करने के लिए, तो जो लोग हैं वो देखते रहते हैं, सीटी मारते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, है ना, पत्थर मारते हैं, तो वो होता है। दूसरे साइड ये भी आया कि जो लेन्स हैं वो नैरो लेन्स है ना, ज़्यादातर स्लम एरिया में। तो क्या होता है कि लड़के लोग खड़े रहते हैं, या लड़के नहीं ना, पर्वर्ट एडल्ट्स ना, उम्र वाले भी लोग हैं वो खड़े रहते हैं, जब बच्चियां जाती हैं तो उनको टच करते हैं, ब्रेस्ट टच करते हैं, बैक टच करते हैं, वो होता है। लाइट्स नहीं है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम होता है रात के समय, है ना, कि लोग उनको टच करते हैं। दूसरा ये है कि है ना कि इन स्लम एरियाज में है ना बार्स हैं, ओके, अगर क्लोज है उनके स्लम एरिया के पास रेजिडेंशियल एरिया का, तो वहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं वो खड़े रहते हैं, कमेंट पास करते रहते हैं, है ना। सो ये आइडेंटिफाई हुआ ना कि इस मैपिंग के द्वारा, और हमने कहा कि ठीक है ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आया, वी नीड टू शेयर दिस बिकॉज विद द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे स्लम्स कुछ पंचायत में आते हैं, कुछ म्यूनिसपैलिटी में आते हैं। सो हमने क्या किया कि जो म्यूनिसपैलिटी वाला था हमने चीफ ऑफिसर के सामने प्रेजेंट किया उसको, और साथ ही साथ पुलिस के सामने उसको प्रेजेंट किया कि भैया ये सब चीज़ें आए हैं। जहाँ तक जो एरिया पंचायत में आता है सो बीडीओ के सामने और कंसर्न पुलिस स्टेशन के लिए हमने प्रेजेंट किया, सो दैट दे टेक एक्शन, एंड दिस वुड हेल्प इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, प्रिवेंटिंग क्राइम। सर ये जो आपने सर्वे किया और उसके बाद आपने जो रिपोर्ट दिया, कुछ हुआ उसके ऊपर या वो रिपोर्ट ही दब गई?
है ना। अनफॉर्चुनेटली अभी हमने कोई कॉन्क्रीट एक्शन देखा नहीं है ना। हमने ये नहीं देखा है कि वहाँ पे टॉयलेट्स बन गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। ओके, है ना। यही प्रॉब्लम है ना। जहाँ पे हम बात करते हैं कि है ना कि निर्भया होते हैं, ओके, और अभी भी आप देखने जाएं कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो ही रहे हैं स्लम एरियाज़ में, है ना। आप देख रहे हैं कि स्ट्रीट पे है ना कई केसेस आए हैं गोवा में भी, है ना कि चाइल्ड के लोगों रेप हुए हैं, गैंग रेप हुए हैं, है ना। तो द प्रॉब्लम इज़ दैट कि है ना कि ऐसा नहीं है कि क्या कारण है जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, वो लोगों को नहीं मालूम है, लोगों को मालूम है। प्रॉब्लम है कि हम एक्शन नहीं ले रहे हैं कि उन कारणों पे, है ना, कि हम प्रिवेंट कर सके अदर क्राइम को। सो हमने रिपोर्ट शेयर की है, ओके, डिप्टी कलेक्टर को, पुलिस को, सबको शेयर, चीफ ऑफिसर को, है ना। पर जिस तरह का एक्शन होना चाहिए था, है ना, इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। It's actually a very shocking thing to note that, even after doing so much, and if an NGO is doing so much, why the administration is not acting upon such kind of reports? Because deterrent is something that is very important. If we don't teach them lessons, or if we don't curtail this kind of menace, ये चलते रहेगा और बढ़ते रहेगा, and it is happening. I also read one of your report wherein not only girls, now even kids are getting abused kind of a thing. ऐसा भी कुछ एक आया था, लड़के लोग का भी। हाँ, ये तो एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ लड़कियां लोग ही है ना विक्टिम होती हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की, है ना। हमने बायना में है ना एक स्टडी किया था लड़के लोगों के ऊपर ही, है ना, क्या लड़के लोग विक्टिम हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के, और हमने पाया कि हाँ होते हैं, है ना। वो एक अलग बात है कि जो समाज है ना वो है ना कहीं पे इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी स्टडी के बाद भी जब हमने ये स्टडी उनके पेरेंट्स को अपने शेयर किया तो कहीं पे डिनाइल था, उनको लगा लड़के कहाँ अब्यूज़ होते हैं, ओके, है ना, वो तो मस्ती है, वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं है, ओके। तो इस तरह की हमारी सोच है, पर हकीकत ये है कि लड़के लोग भी है ना अब्यूज़ होते हैं, पर ये है कि फैमिली है ना उसको ज़्यादा नोटिस नहीं लेती है, फैमिली उसको कंप्लेन नहीं करती है, क्योंकि ये है ना कि लड़के को रोना नहीं चाहिए, लड़के को कंप्लेन नहीं करना चाहिए, और लड़का कैसे अब्यूज़ हो सकता है, लड़का अब्यूज़ कर सकता है, लड़का अब्यूज़ नहीं हो सकता है। तो इस तरह की सोच है ना, हम पाते हैं ज़्यादातर फैमिली में, है ना। एज ए रिज़ल्ट होता है तो वो कंप्लेन नहीं करते हैं। और ये भी ध्यान रखने का है कि I'm a स्टूडेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, और अगर जो लड़के लोग अब्यूज़ होते हैं उनको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिलती हैं, वही आगे चल के अब्यूज़र होते हैं। आप हिस्ट्री देखिए, जो लोग भी ना के अब्यूज़र हैं, है ना, स्पेशली केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, आप पाएंगे कि कहीं पे हिस्ट्री रही है कि वो पास्ट में विक्टिम रहे हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की। यही था कि उनको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिलने की वजह से वो जो एंगर है ना वो निकालते हैं दूसरों के ऊपर। सर, जब आप ये सर्वे करते हैं और उसके रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, आप अपनी तरफ से सजेशन नहीं देते हैं? जी, हम देते हैं, है ना। जो भी स्टडी होती है, जो सर्वे होते हैं, न केवल फाइंडिंग्स होती है ना, पर हमारे ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशंस भी होते हैं, है ना, क्लियर कट रिकमेंडेशन होते हैं, है ना, कि इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन है कि किस डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, ओके। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, पीडब्ल्यूडी को क्या करना चाहिए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, बिकॉज इस केस स्लम के केस में ये भी है कि ज़्यादातर लड़की लोगों को बस में भी अब्यूज़ किया जाता है, ओके। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, तो ये सब किया है हमने। हाँ, हम लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर रिपोर्ट नहीं किया है, हमने जो मेन अथॉरिटी है, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे डीवाईएसपी हो या पीआई हो, उनको सबमिट किया है। अब ये उनके ऊपर है कि वो बुलाए मीटिंग, है ना, और वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को बोले कि भैया ये आया है थ्रू एम्पेरिकल स्टडी, है ना, और आप इस पर एक्शन लीजिए। ना केवल स्टडी था नवीन जी, बच्चे लोगों ने जाके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी, है ना, कि चीफ ऑफिसर हुआ या बीडीओ हुआ या दोनों वेरना पीआई हो या वास्को पीआई हो, उनको शेयर किया, हमने वो फैसिलिटेट किया कि एटलीस्ट ये उनको मोटिवेट करे एक्शन लेने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि है ना वी आर नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड with whatever action has been taken till now. Do you think that there should be some kind of one particular unit
which only looks after this kind of issue, so that जो हमारा future है, अभी जो youths को ऐसा जैसे sexually exploit होता है, and what you said, you know, ये जो boys हैं जो abuse हो जाते हैं, then they become abuser, so उनको ये स्टॉप करने के लिए या कहीं ना कहीं कर्टेल लाने के लिए एक अथॉरिटी की ज़रूरत है, कोई एक बॉडी जो कि स्पेशली डेडिकेट रहे, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर हैज़ हिज ओन वर्क, चीफ ऑफिसर हैज़ हिज ओन वर्क, पुलिस ऑल्सो हैव देयर मल्टीपल जॉब्स टू डू परफॉर्म, सो एक एजेंसी जो कि यू नो हैविंग ऑल द पावर्स एंड कैन act upon it, because it is becoming a very very serious social issue. नहीं, आप जो कह रहे हैं अदन की ये बहुत ही सही है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको समझा है। हम हमारी जैसी एनजीओ ने ऑल ओवर इंडिया ने कहा है कि वी रिक्वायर ए स्पेशलाइज यूनिट। ओके, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 10 साल पहले कहा है कि हर एक स्टेट में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनेगा। ओके, सो हर एक स्टेट में है, हमारे यहाँ भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, ये सब इशू प्रायोरिटी पे नहीं है। सो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, पर जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स हो या दूसरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, वो नहीं दिया गया है। ओके, सो कैसे एक्शन होगा? सो आप यूनिट खोल दो, वो काफ़ी नहीं होता है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स है और दो दूसरे फाइनेंशियल रिसोर्स है, वो भी प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट नवीन जी इज़ दैट कि सरकार इसको इम्पॉर्टेंट समझे, प्रायोरिटी समझे। ओके, और तभी हम इसको कुछ कर सकते हैं। अगर आप दूसरी साइड देखने जाए, निर्भया कांड के बाद अगर आप देखें तो इसको जो कानून जो आए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट कानून आए हैं। ओके, क्योंकि कहीं पे ये लगा है कि अगर आपको कानून की वजह से कमी लगती है तो हम देते हैं कानून। दैट व्हाट पार्लियामेंट हैज गिवन अ मैसेज, बट द इम्प्लीमेंटर्स देयर इज अ प्रॉब्लम। टिल एंड इम्प्लीमेंटर्स अंडरस्टैंड द स्पिरिट बिहाइंड दिस लॉ and accordingly take action, we would be failing to do justice with whatever purpose the law has been formulated. Well, I want to actually, you know, through our channel, we want to make an appeal to the forthcoming, you know, next government in Goa, that, you know, such units, if it is operational, please give them some kind of a power or some authority to act upon, because the kind of work such NGOs are doing, they also gets demoralized if actions are not taken upon, you know, even after giving such a concrete evidences. So that should be one of the main priority if we are thinking of the future, and if we want to make Goa, you know, free from all this menace. अरुण जी, एक बात बताइए, जब आप 30 साल से इस फील्ड में, उससे पहले से काम कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है आप डिमोरलाइज हो गए कि यार मैं करता हूँ, पकड़ता हूँ, फिर छोड़ देते हैं, या कुछ होता नहीं है और बस हो यार जाने दो? नहीं सर, कई बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। अगर आप देखने जाए तो हमारा काम सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का है क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल हैं और आप जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसके अंदर जो भी अथॉरिटी है दैट लाइज विद द स्टेट। ओके, चाहे वो पुलिस हो, चाहे विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, उनके ऊपर है। और हमारा यही रहता है कि हम उनको इन्वॉल्व करें, है ना, और उनका असिस्टेंस लें। ओके, सो ऐसा रहा है कि कभी कभी जब नहीं मिलता है सपोर्ट, ओके, तो फ्रस्ट्रेशन होता है। पर साथ ही साथ ये है कि जो आज तक हम सरवाइव कर पाए गोवा में, आज तक हम कर पाए, इसका भी क्रेडिट है ना अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को जाता है। कि अगर आप देखने जाए, जो प्रेजेंट डीजीपी है शुक्ला जी, अरे ही वाज वन ऑफ द दोस्त जो कि यहाँ पे एसपी साउथ थे। तो एक ज़माने में यहाँ की बहुत फेमस घरवाली थी महादेवी, हमारे कंप्लेन पे उन्होंने उसको अरेस्ट किया था, और उसके बाद एक लाइन लग गई थी ब्रॉथल कीपर्स के अरेस्ट का, उसी तरह से कई ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारे काम समझते हैं। ओके, सो दे हैव बीन सपोर्टिव। ओके, एंड एज ए रिजल्ट वी फाइंड इज दैट कि जो हम लोग कर पाए हैं, जैसे एसडीएम थे लेविंसन मार्टिन्स, ही केम एट अ वेरी क्रूशियल टाइम डिमोलिशन के बाद, और हमारे पास उस समय एक चैलेंज था कि वापस ब्रॉथल कीपर आ रहे थे। So I met him, I talked to him, he said don't worry, we will not allow this again to get re-established at red light area, and he was a SDM who used to come in the area without giving notice to anyone and move around. Okay, so एक मैसेज दिया उन्होंने कि भाई हम वॉच कर रहे हैं, अगर कोई आके वापस यहाँ पे शुरू करता है, so I am not going to tolerate. So under his leadership we have many rescues. उस समय एक विश्राम बोरकर करके एसपी क्राइम हुआ करते थे, सो उनके नेतृत्व में हमने कई रेस्क्यूज किए। आई एम टॉकिंग अबाउट
pre-demolition also and post-demolition ago, because post-demolition is also very important. So initial after demolition, जो 6 महीने 1 साल था, there was an effort to re-establish red light area. So it was these officers, who based on our information they took action and they gave a message that we are watching, will not allow to restart this. ओके, सो कहीं पे फ्रस्ट्रेशन है, पर जो हमारा एनकरेजमेंट भी आता है, जो हमारे जो सक्सेसफुल केसेस रहे हैं, जिसके लिए डेफिनेटली द क्रेडिट गोज टू मेनी ऑफ दिस अपराइट ब्यूरोक्रेट्स आल्सो. Sir, we'll make sure that this news goes to even the DGP Shukla ji, jo now he is, senior most and top uh, cop in the state government, state police. So now, since he is there back, क्या अपील करना चाहेंगे? बिकॉज ये जो चीज़ें नहीं हो रही है, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? I would appeal that कि Shukla ji himself has a very good understanding of sex trafficking for commercial sexual exploitation. There would be very few police officers who themselves has raided a place, because I remember when he was there in 2003, he himself raided a brothel and rescued 2 minor girls. I would say that things have not changed much. Now he is the DGP of Goa. Okay, if he can get all the systems in place, what we really require is active anti-human trafficking unit, because we are a destination state. We will be always vulnerable for sex trafficking, not only inter-country but other interstate also. Okay, so it will be a great help. It would be a great contribution in combating sex trafficking if we have active and functional anti-human trafficking units in both South Goa as well as North Goa. While you were talking, आपने लेविंसन मार्टिन का नाम लिया. I wanted to add up there that even we had an experience with him. There was some ripening of fruits were going on in Kharewada, and similarly, how you said, we also passed the information to Levinson Martin, and believe me, he was so quick enough. He came without any police, without any information, and he raided those premises. Our information was true, so he was successful in raiding, and such a big lot of ripened mangoes were caught. So Goa needs such kind of dedicated officers who don't bother to come forward. Moving forward, I just wanted to ask now, since you said that you are acting against or you are working against such organized syndicate crimes, कभी थ्रेट व्रेट आता है या नॉर्मली कुछ नहीं होता? अरे बहुत थ्रेट आए. पहले तो ये रहता है ना कि कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो पहले स्टेप में लोग धमकाने की कोशिश करते हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम मैं तो नाम बोलने में वो नहीं होता है. सो पहले जो होते थे मिनिस्टर वगैरह, सो उनके PA वगैरह लोग, ओके, सो दे कॉल थ्रेटेंड, ओके, देन दे ट्राई टू ल्योर यू विद सर्टेन काइंड ऑफ पोजीशन इन द गवर्नमेंट. ओके, वो सब रहा है, और जब वो सक्सेसफुल नहीं होता है, then what they do is that try to malign your name. Okay, that they are in this business, they are in this because they want to take money, they want to make money. Okay, so ये सब रहा है. Okay, पर ये रहा है कि कहीं पे ये सब चीज़ें बॉदर नहीं किए हैं, और इसका नहीं करने का कारण ये भी है कि कहीं पे कि जो नेशनल स्टडी मैंने की थी, उसमें ये था कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, और ये अगर आप इसमें ग्रास रूट लेवल पे काम करने जा रहे हो, तो ये सब आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा. ओके, फॉर्चुनेटली नो हार्म हैज़ बीन कॉज्ड. ओके, फॉर्चुनेटली देयर आर पीपल इन गोवा who know what we are doing. They appreciate our work and they support our work, and that's the reason कि even though it is an organized crime, crores of rupees are being made in this, and due to our intervention, okay, people are losing business. They are losing their income, brothel keepers, pimps and all. Okay, but fortunately because we have love of people, we have not yet been harmed. Maligning name, that is different, but nobody has harmed us. The credit goes to like the people we work with. They have trust in us, and the people who know about our work, they stand with us whenever there is some kind of threat. सर, कभी ऐसा डिमोरलाइजिंग मोमेंट आया है जब आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी लोगों की तरफ से
कुछ अलग ही एक्विजिशन आया है ऐसा? नहीं, वो होता है यार। मैं कहता हूँ कुछ लोग कहते हैं ना मेरे को कि ये जब आया था तो वो जीन्स कुर्ता और एक झोला लेके आया था, ओके, और अब देखो अना कि अरे ये कार में घूमता है ना यार। अना लाइक आई डोंट वांट टू बोस्ट अराउंड कि यार अना दैट टाइम आल्सो आई हैड मनी, ओके। सी आई टुक दिस जॉब not under any pressure. This I took it because I chose to take it. Okay, and as you rightly said, is I chose to take it, leaving many other better opportunities. That's true. Okay, और उस समय स्टाइल हुआ करता था। आई केम फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी यार, है ना, जहाँ पे स्टाइल होता था खादी का कुर्ता जीन्स, है ना, और खादी का ना झोला। सो दैट्स हाउ स्टार्टेड। ओके, एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू एंटर द रेड लाइट एरिया, है ना, इन अ सेंस नॉट थ्रेटनिंग पीपल, ओके, बिकॉज आई एंटर रेड लाइट एरिया एज ए टीचर, है ना, सो दैट पीपल एक्सेप्ट मी। अगर मैं ये आता, मैं चलो मैं लड़की लोगों को रेस्क्यू करने जा रहा हूँ, मैं कल से ब्रॉथल रेड करने वाला हूँ, ये चीज़ें कौन मेरे को अलाउ करता? फॉर 1 ईयर, है ना, एक छोटे से वो अम्बेडकर क्लब एक हुआ होता था, एस्बेस्टस शीट Yeah, था, I know that. इतनी गर्मी होती थी वहाँ पे, कोई हमें एक्सपोजर नहीं था इस तरह के स्लम में काम करने का। ओके, माई डैड इज ऑफिसर इन एयरफोर्स। ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ऐसे सिचुएशन में कभी काम नहीं किया है। ओके, सो यहाँ पे रहे, किया 1 साल तक, रिलेशनशिप न बनाए, है ना, और फिर उसके बाद ये सब तोड़ फोड़ हम लोगों ने रेस्क्यू वगैरह शुरू किया। पर कभी कभी लोगों को नहीं समझ पाते हैं, लोगों को ये लगता है कि इन्होंने ये स्टार्ट किया, एनजीओ सेटअप किया है ना, इसलिए कि वो पैसा बना सकते हैं। नहीं बॉस, आई हैव बेटर अपॉर्चुनिटी, ओके, है ना, ऑफ अर्निंग वेल, है ना, इफ आई डोंट वर्क एट अर्स। ओके, है ना, सो वो कभी कभी लोग बोलते हैं तो थोड़ा, है ना, दुख होता है कि, है ना, आप इतने सीरियसली, है ना, कमिटेडली, है ना, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो और लोग आपके इंटेंशन पे सवाल उठाते हैं, तो वो बुरा लगता है ना। पर समझ रहे हैं, अब धीरे धीरे उम्र भी हो रही है कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ओके, इफ दे कांट फिजिकली हार्म यू, ओके, इफ दे कांट लीगली हार्म यू, they can maximum do is that malign you, know, that's all they can do. और एक ऐसा कोई मोमेंट जहाँ पे आपको बहुत प्राउड फील हुआ होगा किसी एक ऐसे केस को लेके जिसमें कि आपने नॉट ओनली सक्सेस बट यू नो मेक दैट फैमिली टुगेदर, और कुछ ऐसा कभी? ना कई केसेस है, मैं बताता हूँ। जैसे एक तो केस ये था कि हमारा एक केस था कि डिमोलिशन के बाद ही एक लड़की थी जो कि 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, उसकी माँ ने उसको डेडिकेट कर दिया, क्योंकि उसकी माँ धंधे में थी, रेड लाइट एरिया बंद हुआ, इनकम नहीं था, तो उसने उसको धंधे में डाल दिया। हमें खबर मिली, हमने क्राइम ब्रांच के हेल्प से उसको रेस्क्यू किया और उसको प्रोटेक्टिव होम में रखा। देन वी हेल्प इन डूइंग हर ग्रेजुएशन, देन गॉट हर जॉब एंड देन शी गॉट मैरिड। ओके, जब ये केस कोर्ट में आया, केस को आने में 10 साल लगे, तभी तक और वो शादी करके सेटल हो चुकी थी। तो जब कोर्ट में केस आया, और उसके पति को ये नहीं मालूम था उसका बैकग्राउंड क्या है, तो जब कोर्ट में, चिल्ड्रंस कोर्ट में ये केस आया तो कोर्ट ने बोला आप उनको लेके आइए, पर हमने भी कोर्ट को बोला कि भाई देखिए, अरे अब हमारे पास सवाल है कि हम उसकी माँ को सजा दिलवाएं, ओके, और या उसकी ज़िंदगी बर्बाद करें। ओके, सो वी शेयर्ड दैट विल नॉट बी पॉसिबल। वी डिड टॉक टू हर, अदर शी सेड इज दैट कि सी, even if my mother gets convicted, then also they will come to know. Okay, and if I come for to depose because she was married in Karnataka, I have to give reason. Okay, so I would prefer not to. But in that case, what happened is that the court still went ahead, and convicted her mother, saying that we don't have any reason to suspect this guy, because I was the complainant in that guy, in that case. Okay, because I don't have reason for for suspecting him of malintention to harass this lady. Okay, so based on my complaint and based on my statement, definitely they were panchas and others. Okay, उसको 7 साल की सजा हुई। उसके अलावा कि कई केसेस हैं, कि जैसे कि कई अदर केसेस हैं, जैसे बांग्लादेश के केसेस हैं, लड़की लोग को लाया जाता है, बिना डॉक्यूमेंट के लाया जाता है। हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि जब हम बांग्लादेश एम्बेसी जाते हैं, वो नहीं कहते हैं हमारा सिटीजन है, तो हमें टाइम लगता है, हमें उनके डॉक्यूमेंट्स ला के, वहाँ के NGOs के हेल्प के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स ला के, फिर उनको उनके हाई कमीशन को बोलते हैं देखिए अब डॉक्यूमेंट आए, अब तो आपको विश्वास है ना कि आपका है, और फिर वो लोग भेजते हैं, और फिर वो जाके बोलते हैं कि थैंक यू वेरी मच, है ना, कि हम अपने बच्चे से मिल गए या हम अपने पेरेंट्स से मिल गए, है ना। तो कई केसेस है सर, है ना। और सबसे बेस्ट तो ये चीज़ है सर कि जैसे आपने हमारा स्विफ्ट वॉच देखा होगा,
अब हमारी दूसरी फैक्ट्री स्टार्ट हो रही है, वो आके देखिए, वहाँ पे जो लड़कियाँ लोग धंधे से बाहर निकलती हैं, है ना, और उसके बाद जो उनका व्यू पॉइंट होता है ना, उनके एक्सप्लॉयटर के बारे में, है ना, और जिस तरह से वो सर्विसेज को रिस्पॉन्ड करके नॉर्मल लाइफ जीती हैं, वो हमारे लिए बहुत सेटिस्फैक्शन, और वो एक्चुअली सही सक्सेस है। Uh, sir, if we talk about this issue, I think it will be dedicated to whole day. इतने cases रहेंगे. But एक final आपसे एक अपील चाहूँगा. What exactly as an NGO, okay, serving for Goa and people in distress for last 3 decades, क्या अपील करना चाहेंगे? Next government should make what kind of effort so that this issue somewhere gets to a logical conclusion. देखिए अन्ना, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि कहीं पे गोवा सरकार एक पॉलिसी बनाए, है ना, कि सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर, है ना, जिसके अंदर वो देखे कि किस तरह की चीज़ें वो न करे जिससे, है ना, सेक्सुअल वायलेंस बढ़ता है। अब जिस तरह से गोवा का पोर्ट्रेयल हो रहा है, ओके, है ना, जिसपे ये सेक्स, सन एंड सैंड ज़्यादा एडवर्टाइज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ओके, और डेफिनेटली एक मार्केट डेवलप हो रहा है। तो एक पॉलिसी होनी होगी, क्या हमें कसिनो चाहिए, क्या हमें मसाज पार्लर चाहिए, और जिस तरह से हम पोर्ट्रेयल कर रहे हैं कि पिक्चर में जैसे भी है ना, कि जिसकी वजह से एक नेगेटिव इमेज जा रहा है, और उसके वजह से टूरिस्ट ऑल ओवर द ग्लोब are coming, and one thing they see that sex is easily available. It is not only the victims of commercial sexual exploitation who being sold, but my experience of when I take sessions in colleges, they say that sir, we get solicited by the tourists. ओके, अरे क्योंकि उनको लगता है कि सब लड़कियां यहाँ पे जो लोग हैं वो धंधा ही करती हैं, लूज कैरेक्टर की है। तो सरकार को एक पॉलिसी लेके आनी है। दूसरी चीज़ मेरे को लग रहा है कि हम सेक्स ट्रैफिकिंग तब तक हम नहीं रोक सकते हैं जब तक कि हम डिमांड फैक्टर को ना एड्रेस करें। और डिमांड फैक्टर का मतलब ये है कि जो क्लाइंट्स हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ द क्लाइंट हु इज़ क्रिएटिंग डिमांड्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिमांड, है ना, दिस मार्केट इज़ बीइंग सेटअप। So I hope that the new government takes a note of the points raised by Arun Pandey ji, because these are very crucial points for the betterment of Goa, and the kind of projection which Goa internationally and nationally is getting. I think it's a high time that Goa needs to change over. It's that picture which is shown across the globe, and it can happen only if there is a goodwill, and the next government should perform in such a manner that this kind of things should come to a conclusion. So thank you very much, Arunji, for sharing your views with our viewers, and you have enlightened us with various facts. Anything closing statement you want to make? No, thank you so much, Naveen ji, for inviting. And usually people don't want to discuss this issue. Okay, and thank you so much that you have given us platform and to share our view. I hope as you appeal to the government, that government would take this issue seriously. Okay, because our fear is that if action is not taken today, tomorrow would be too late. We don't want Goa to be Bangkok. Thank you so much. Thank you very much, sir. We'll be definitely making a final appeal to the government to look into this aspect to make Goa a drug and sex trafficking free state. Thank you very much.